Good afternoon, all the participants. On behalf of the Academy, I extend warm welcome to each one of you for today's webinar on ratio analysis, theory and practicals. And to take up this session, we have Sri G. Vijay Kumar, who is working as faculty in IRIFAM. Welcome, sir, and it's over to you. Yeah, good afternoon, Bernard. Thank you so much for having me. So, good afternoon, welcome, and thanks to each of you for being here. Students who are preparing for LDC would be very useful in this class. However, I've done last class some management accounting, the importance of management accounting, what are its functions, what are its objectives and all. So it's one of the objectives of management accounting is analyzing the financial statements. That's very important. So now how do you analyze the financial statements? We have certain tools. Every company will prepare their financial statements like profit and loss account and balance sheet. Okay, that is being done. After preparing their P&L account, income statement and balance sheet, they also would like to know how are they doing when compared to last year, when compared to from this year to the next year, what are the targets they are going to set, whether the last year targets have been met or not, whether how are they faring, all those analysis have to be done. In that, for that matter, everyone, not only in companies, in sole trader, in personal life also, we always try to check up how we scored last. Suppose if it's a 3-year degree course is there, तो हम फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स आए, सेकंड ईयर में कितना मार्क्स आए, कंपेयर करके फिर थर्ड ईयर में कितना आता कंपेयर कर सकते. सो मेनी थिंग्स आर देयर. या तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में इतना परसेंटेज या थर्ड ईयर में हम अच्छा करेंगे करके यू ट्राई टू डू इट. सो ऑल दिस इज कॉल्ड एनालिसिस. सो like no, technically speaking, we are doing financial statement analysis. So this is one of the tools. As a manager of management in a company, the management accountant has got certain different tools hai unke paas. For example, ratio analysis a tool, a comparative state ratio analysis effect of comparative statement, common sense statement, trend analysis, fund flow statement, cash flow statement, वगैरह वगैरह. There are so many tools. इसके through से they will try to analyze. So one of the tool I am teaching you today, which is very powerful, very important tool, which is called ratio analysis. आप लोग any doubt is there, please keep on chatting with me, or whether you can unmute them because there are only 25 people are there. They can interact with me. 25 or 20, 30 people are there. Yes, if their doubts, them. yeah, if their doubts are because the students are less, then I can then and there I can interact with them and clarify their doubts. They also can chat, but I'm just giving them open. It's not like hundreds. There are only 30 people are there. I can easily handle it. Their doubts and clarification. So is it okay? आप सबको समझ में आना? The introduction part of it. As a management accountant, he will analyze the financial statements. So financial statement analysis मतलब क्या? कैसा चल रहा कंपनी? लास्ट ईयर से ईयर अच्छा है, ये ईयर टारगेट लगा के नेक्स्ट ईयर कंपेयर करेंगे. इंट्रा फर्म बोलते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजंस ये सब कर सकते. So there are so many tools are there. Once again I'll tell you, the tools are called what I told you. Ratio analysis is one of the important tools. Fund flow statement, cash flow statement, comparative statement, common sense statement, trend analysis, वगैरह इतने सारे statements हैं. So we are doing in detail today. I'm doing is what? Ratio analysis. Any doubts are there? Please ask me. Karishma, you are there. You have been following me, my classes, so I think you'll be able to understand. Satya Srinivas, Girija, Abhishek Sharan, आप सब देखो. और कोई है तो? Bengra also was there in my last class, so check up कर लो. If you have doubt, I will take it forward. Good. So once again, welcome and thanks
to all of you. This is my mobile number. This is my mail ID. So for today's class, any doubts, you can always clarify with me. So what is ratio analysis? I said it is a technique of analysis and interpretation of financial statement. So once again, I said what are financial statements? आपको मैं बताया. Financial statements consists of. I am not listening. These financial statements are income statement and balance sheet. ये दो statements को हम analyze करते हैं. उसको बोलते हैं analyze करने का मतलब कि interpretation करना. Means what? Interpretation means what? How is the company from last year to this year? How it is? What is the percentage? Whether sales? For example, I'll ask all of you all one example. You tell me. Agar last year sales have gone up from last year to this year. Good afternoon, Mohan Pandit. Good afternoon to you also. Right. So, इसका मतलब क्या है? I'll just give you one small example. आप बोलो. Last year sales is 1 lakh. This year sales is 2 lakhs. Is it good or bad? You'll say yes. When you compare to last year आपका sales 1 lakh से ये दुगना हो गया, तो ये बढ़िया है. आपका सेल्स ज्यादा होने से क्या होता है? प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा. इट्स गुड. आपका अगर सेल्स रिटर्न्स है, लास्ट ईयर 10,000 है सेल्स रिटर्न्स, ये ईयर अगर 5,000 घटा, कम हो गया, इसका मतलब ये अच्छा साइन है, बुरा है. If the sales returns are less, we should think that sales are more, it's a good. But sales returns कम होने का मतलब क्या है? It is a good sign. That means the customers are happy in accepting your product. The product quality is good. There is not bad. No one is returning to you. Returns कम होने का मतलब क्या? The customer acceptance has gone up. It's a good sign. So ऐसा you have to analyze these things. एक बढ़ेगा तो अच्छा होगा, एक कम होगा तो वैसे अगर सेल्स बढ़ने से अच्छा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ना नहीं, कम होना. बिकॉज सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट बढ़ने से फिर अपना प्रॉफिट घटेगा. सो वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स. दैट्स सो इंपॉर्टेंट. रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल. Karishma, I am going to ask you one small question. You just answer. Agar X is got 90%, X got 90 marks and you got 75 marks. Who is a good student? X got 90 marks and you got 75 marks. Who is a good student? X, sir. X. But X got 90 out of 100 and you got 75 out of 75. Karishma? Then 75 me, sir. So you should know the base. So that is all. So unless you have the information, your analysis will be wrong. Just don't go by the absolute figures. Absolute figures 90 है, 75. 90 out of how much? 75 out of how much? मालूम करने के बाद ही, I mean, if you know that, we'll be able to take our decisions properly. Am I clear with the examples? Karishma, समझ में आया? You understood what I said? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt is there? Please stop me then and there. I'll. बेंगरा आप भी देखो, अगर विनोद कुछ डाउट है तो पूछ लेना प्लीज. सो रेशियो एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर? इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस रेशियोस फॉर हेल्पिंग इन मेकिंग सर्टेन डिसीजंस. It is not an end in itself. Just preparing ratio is not an end. Ratio analysis, तुम ratio find out करने के बाद it's not the end. उसको लेके we have to try to analyze. क्यों कम हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, और ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, क्या हो सकता है. That is what. It is not an end in itself. इसका मतलब वो है. It is only a means of better understanding of financial strength and weakness of a firm. So फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है आपका, आपका वीकनेस क्या है, इसके रेशियो से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना. सो इट इज ओनली मींस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग. रेशियो विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अभी फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में करिश्मा you are expecting 90 marks but you get 80 marks, then again you'll check up, then you'll know, you can find out what is the problem, where is your weakness, and you can try to check up and try to work out on that. Is it clear? Yes, sir. Means of interpretation का मतलब क्या है? आप interpretation का मतलब आप उससे आप चेकअप कर सकते, इंटरप्रेट कर सकते कि कैसा चल रहा कंपनी. लास्ट ईयर अगर आपका 90
आपका ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, ये ईयर 25% आने से आपका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? हो ठीक है, मेरा कंपनी लास्ट ईयर से ईयर अच्छा हो गया, दैट इज कॉल्ड यू इंटरप्रेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ओके, उसका मतलब ये है विनोद, समझ में आया ना? उसकी इंटरप्रेट करने पर उसको समझ, आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड टेक सम एक्शन, उसको बोलते इंटरप्रेट करना है आपके। एनी क्वेश्चन? अभी समझ में आ गया विनोद? So what is the nature of ratio analysis also? Now it's theoretical, I'm just telling you, very, very important, will be useful for very important question aayega aapko, you just see. Ratio analysis is a technique of analysis and interpretation of financial statement. It is a process of establishing and interpreting various ratios for helping in making, there so many ratios are there. So many means so many, I will discuss many of them. अपने रेलवे में ऑपरेटिंग रेशियो, करिश्मा सपोज यू आर फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे, योर ऑपरेटिंग रेशियो इज 90% and South Central operating ratio is 95. Which railway is better? Southwestern Railway, sir. Because very good. So operating ratio, why our operating ratio South Central is 95? 95 is better or 90 is better? 90 is better, sir, because operating ratio should be lesser. Why? Very good. Why it should be less? Means I want you to tell only that is compared with the expenses. So for every 100 rupees you are earning, you are spending, Karishma, 90 rupees, your railway. And our railway, for every 100 rupees they are earning, they are spending 95. So that is an expenses ratio, operating expenses. Operating ratio is nothing but the expenditure incurred with the earnings you are taking. So what happens? So the ratio, the more is the expenditure, the less is the profit. So I want you to know, very good. Means you are explaining, you understood what I told you. Yes, sir. The risk, some ratios, the less the better, some ratios, the more the better. For example, what I'm trying to take, interpreting various ratios, 1 or 2 ratios I want to make you understand so that you will be able to understand what exactly we are trying to do. For example, now current ratio 2:1 is ideal, they say. For example, what is current ratio, Karishma? Vengra? Samantha? Present ratio, sir, what is taking on currently on current No. expenses? No. Current ratio is what? With current assets and current liabilities. Okay, Karishma? So, Yes, sir. for example, current liabilities, you are there, you must be a housewife or you are still not married. I do not know what is your, are you married, Karishma? Yes, sir, I am having a child. Okay, very good. Suppose 2 you years have, very good. Listen, now the example. You have to pay, your assets are say 50,000. Okay, I'll give an example. Are you able to understand? Remember, are you able to understand? I'm audible. Yes, sir. So you are having assets 1 lakh, 2 lakhs, and assets 1 lakh. Is it good or bad? Karishma, your assets are 2 lakhs. Your liabilities are 1 lakh. Is it good or bad? Good, sir. Good. Suppose if you are having 3 lakhs assets and 1 lakh liability, is it good or bad? Good. That is bad. Ideally is only 2:1. You should not have to pay 1 lakh liability. You should have having 2 lakhs is more than enough. Why should you have 3 lakhs with your current assets? You are idling the money. Suppose, Karishma, you are coming to office. Will you bring the entire salary in your money purse and come to the office? No, sir. Why you won't come? So will you get the entire cash in your purse and come to the office? No, sir. Whenever we require, we will. No, withdraw. you know, per day you may have to spend 100, 200 rupees. You may keep some 300 rupees in your purse and come, isn't it? Or 500 rupees. Will you keep Yes, some sir. 520? Suppose your salary, are you section officer or you are A? Karishma? JA, sir, now. A. Suppose your salary is say 30 to 40,000. Will entire salary will keep in the purse and roam around? No, sir.
So like that. So these ratios will tell the company how much they should keep in the current. They should not keep more than the amount required. If you are keeping more than, suppose if you are keeping more money in your purse, Karishma, I'll meet you and say, Karishma, can you give me 5,000 loan? I'll ask you. Understood? Okay. See, Karishma, your salary is there, entire salary you're keeping in a purse and roaming in the office. I've seen it. Then I'll ask Karishma, will you give me a loan of 5,000? You cannot say no to me because I'm your Yes. friend. Because Yes, sir. I can see the cash with you. Why are you inviting trouble? Or some fellow will see slowly try to knock away. He'll try to take your bag away. Or you are losing unnecessarily, isn't it? Yes, sir. Then the same money, if it is kept in the bank, you'll get some 5-10 rupees interest at least. Yes or no? Yes, sir. And it is safe also. Yes or no? So this is how my ratios will tell the management how much should be the current ratio, how much should be the liquid ratio, how much should be the debt equity ratio, how much should be the gross debt equity ratio. So many ratios are there. So we should be able to understand. I do not know others, no one is responding. दूसरे लोग समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भैया लोग, पवन, मेघना सब, कुछ तो बोलो, समंता, गिरिजा, everyone, understanding? Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट है तो पूछ लेना प्लीज. ओके, थोड़ा अच्छा रहेगा. यस, गुड. You are understanding? If you are following, I'll be happy. The idea is you have to follow. I'm trying my. So the following are the 4 steps involved in the ratio. So what is ratio? I just told you income statement. You remember, Karishma, we have done final accounts, trading and P&L account and balance sheet. आपको सबको मालूम है ना? अजय सिंह, हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं ना? ओके, ठीक. तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप करें ना, वो उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बोलते हैं. वो लेके हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता, वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, एवरी ईयर हम एट द एंड ऑफ द ईयर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद, इट इज नॉट एन एंड. वो प्रिपेयर करने से नहीं होता. प्रिपेयर करने के बाद अपन चेकअप करना, हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज कितने हैं, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, हमारे नेट प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है, लास्ट ईयर लोन कितना था, अभी कितना लोन है, लास्ट ईयर कैश एट बैंक कितना था, अभी कैश एट बैंक कितना है. ये सब एनालाइज करना. बहुत समझ में आ रहा? Yes, everyone. So this is how we try to analyze. So following are the 4 steps involved in ratio analysis. Selection of relevant data from the financial statements depending upon the objective for the analysis. आपका objective क्या है? आपको क्या चेकअप करना है? आपको सेल्स चेकअप करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट देखना पड़ेगा. आपको नेट प्रॉफिट पता चेकअप करना है तो P&L देखना है. आपको करंट रेशियो देखना है तो बैलेंस शीट देखना है. तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. सो सिलेक्शन ऑफ द रेलेवेंट डेटा. रेलेवेंट डेटा मीन्स व्हाट? P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है. तो इधर देखना, वो उसके ऊपर निर्धार होता है. निर्धार का मतलब क्या? डिपेंड होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या चेकअप करना है. ये चेक. अभी मोहन पंडित, आपको चेकअप करना है कि राइस कितना है, राइस घर में आपका राइस है नहीं है, शुगर है नहीं है. आप ड्राइंग रूम में नहीं चेकअप करते, किचन में जाके चेकअप करेंगे राइस है नहीं है, शुगर है नहीं है करके. सो लाइक दैट, वेयर टू चेकअप डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव. सो आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेकअप करते. देन उसके बाद आप देखने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट इज व्हाट? Calculation of appropriate ratios from the above data. So, your objective is to find out your gross profit ratio. तो हम क्या करते? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करते. आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर टू ये ईयर. तो हम ट्रेडिंग अकाउंट निकाल के उधर का फिगर्स लेके हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करते. ये सेकेंड स्टेप है. थर्ड स्टेप क्या करते? हम कंपेयर करते. लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये ईयर कितना है. लास्ट ईयर सेल्स कितना है, अभी कितना है. लास्ट ईयर कैश इन हैंड कितना था, अभी कैश है. लास्ट ईयर डेटास कितना था, अभी डेटास कितने. लास्ट ईयर जो भी है कैपिटल कितना, अभी कितना. ऐसा
with the ratios of the same firm in the past, or the ratios developed from the projected financial statements, or the ratios of some other firms or the company. जो भी आपको इंडस्ट्री से करना है, फर्म टू फर्म करना है, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री करना है, अपनी कंपनी से लास्ट ईयर से ईयर करना है, ये ईयर से नेक्स्ट ईयर करना है, जो भी है आप कंपेयर कर सकते हैं। करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन मींस अभी इंटरप्रिटेशन मीन अभी चेकअप करते कि लास्ट ईयर 20 था, ईयर 25, तो ईयर इंटरप्रिटेशन इसका 20 से 25 होगा, तो ये बढ़िया है, लास्ट ईयर से ईयर हम अच्छा कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। व्हाट इज कंपैरेटिव एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते क्या, लास्ट ईयर का इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं। लास्ट ईयर का इनकम स्टेटमेंट, ए ईयर का इनकम स्टेटमेंट, उसको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इनकम और बैलेंस शीट भी होता है, कंपैरेटिव मींस हम लास्ट ईयर से ईयर कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। मोहन पंडित ठीक है, समझ में आया? लास्ट ईयर से ईयर कंपेयर करते उसको कंपैरेटिव बोलते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट लास्ट ईयर का ए ईयर का, लास्ट ईयर का इनकम स्टेटमेंट ए ईयर का इनकम स्टेटमेंट हम कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखो ठीक है मोहन, करिश्मा, यू आर एबल टू फॉलो लिटिल बिट ऑफ हिंदी आल्सो आई एम टॉकिंग? Yes, Pandit has understood. Good. Please keep asking. Karishma, do you know Hindi at all? हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं ना? हिंदी आती है, मैं मुस्लिम लड़की हूँ। हाँ, सॉरी? मैं मुस्लिम हूँ सर, हिंदी आती है। आती है ना? Very good, good. Yes, good. I'm not talking fully Hindi, थोड़ा हिंदी English because some people wanted in Hindi also, so I'm trying to teach in Hindi also. Good. Yes, sir. Okay, good. So this is the 4 steps. First step is what you want the information, what is your objective. Depending upon that, you take the income statement लिए तो अपने को ट्रेड नेट प्रॉफिट आता, बैलेंस शीट लेने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट होता है, इनकम होता, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो ऐसा होना तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट लेंगे। वो लेने के बाद वी कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट रेशो फ्रॉम दैट। वो रेटो फाइंड आउट करने के बाद लास्ट ईयर से ईयर कंपेयर करेंगे, तो वो कंपनी से ये कंपनी कंपेयर करें। हम करते हैं ना मोहन, एक बार अपने 2 बच्चे, तुम्हारा फ्रेंड का बेटा और तुम्हारा बेटा आर गोइंग टू द सेम स्कूल, तो उसका बेटे को 20 मार्क्स आए, तुम्हारे को बेटे को 15 मार्क्स आए, तो तुम कंपेयर करे भैया उसको 20 आए तेरे को 15 क्यों आया करके ऐसा कंपेयर करते हो। सेम टीचर है, सेम स्कूल है, तो क्या कर रहा, पढ़ रहा नहीं करके वी हैव टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स। वैसा सेम थिंग लाइक व्हाट वी डू कंपेयर, इसका मतलब ये है। उसके बाद अभी अपने बच्चे को 15 मार्क्स आए, 20 के बजाय 15 आए, क्यों आया मींस इज फाइंडिंग इट सम वीक, तो उसको ट्यूशन देना है, तो अपन घर में बैठ के पढ़ाना है, क्या भी करना है उसको बोलते हैं हम इंटरप्रेट करना है। हम क्यों कमाया उसको समझने का कोशिश करें तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना है। सो दिस इज द 4 स्टेप्स का। गुड। उसके बाद हम आएंगे अभी यूजेस मींस एडवांटेजेस, नथिंग बट importance, advantages, significant, all mean the same. Uses, significance, important, advantages of ratio, all mean the same, different. So ratio analysis is an extremely useful and the most widely used tool of financial analysis. Okay, I told you, no? Extremely useful and the most widely used tool. There are so many tools for the financial analysis. I told you, fund flow statement, cash flow statement, comparative statement, common sense statement, trend analysis. If they say dates are there, but one of the most powerful and extremely useful tool is ratio analysis. It helps in better understanding of financial statements. It helps you to understand the financial much better. The study of various ratios helps the management in carrying out its functions more effectively and efficiently. Thus, ratios have wide applications and are of immense use in the modern days to the various sections concerned to the enterprise. Iska ye hai. So you understood. So what I said, the study of various ratios helps the man. Various means what I told you: gross profit ratio, net profit ratio, current ratio, quick ratio, asset ratio. I said dates are ratios. So the study of various helps the man in carrying out its functions more effectively and efficiently. Gross, आपका इनकम में फाइंड आउट करना तो ग्रॉस प्रॉफिट देंगे, बैलेंस शीट का कुछ कंपेयर करना तो बैलेंस शीट का देंगे,
नेट प्रॉफिट का होना तो नेट प्रॉफिट, तो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना वो रेशियो फाइंड आउट करके वी ट्राई टू फाइंड आउट एंड कैरी आउट आवर फंक्शंस वेरी इफेक्टिवली एंड efficiently. Thus, ratios have wide implications and are of immense use in the modern days to the various sections concerned to the enterprise. So, one of the managerial uses of ratio है. So, manager के लिए management के लिए कैसा use होता बोले तो देखो समान ऐसा. So, while calculating ratio, which figures are considered? I'll tell you. मोहन मैम आपको एक कैलकुलेट करके दिखाएंगे एक प्रॉब्लम. जस्ट 5 minutes दो. लेट मी फिनिश. एक प्रॉब्लम करके दिखाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए कैसा फाइंड आउट करना, फॉर्मूला क्या है कैसा. अब ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो के लिए आप थोड़ा लेते ना इंफॉर्मेशन, वो जैसे ऑपरेटिंग रेशियो करते वैसे हम सब रेशियोस प्रिपेयर करते. आई विल शो यू हाउ टू डू इट. ओके, सो ये मैनेज, ओके राइट. So managerial rules of ratio analysis is what? Ratio analysis helps the management in the following ways. So how does it help? देखो first helps in decision making. First in decision making क्या decision लेना. अपने लास्ट ईयर से ईयर अच्छा हुआ तो ठीक है, खराब हो रहा, कम हो रहा, सेल्स कम हो गया तो हम क्या करते, हम सेल्समैन को थोड़ा एक मीटिंग लगा के उनको थोड़ा मोटिवेट करके थोड़ा भैया लास्ट ईयर से ईयर सेल्स टारगेट कम हो गया, तुम कुछ करो, कुछ उनको कुछ इंसेंटिव देके कुछ और थोड़ा करके थोड़ा ये करते हैं. तो दैट इज हाउ यू टेक द डिसीजन मेकिंग. हेल्प्स इन कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म इन ए मोर इजी एंड. और आप सबको जो भी स्टेक होल्डर्स है जो भी है ऑफिस में, अब एक बार अभी तुम्हारा एफएनसी है, एक बार मीटिंग रखते, ये सेक्शन ऐसा है, ये सेक्शन में ये है, इधर कम है इधर ज्यादा है, इन लोग ठीक से काम नहीं कर, उन लोग ठीक से काम नहीं कर. सो जीएम एंटायर रेलवे को करता, रेलवे बोर्ड ऑल द रेलवेज को करता ऐसा. सो दे कम्युनिकेट भाई हमारा ठीक से नहीं हो रहा, ठीक करना करके. सो दैट इज हाउ दे मैनेज इन ए मोर इजी एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर. One is decision making, one is communication, very important of strength and weakness. अभी अपने घर में अपने बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा या तो अच्छा पढ़ रहा है, उसको स्ट्रेंथ बोले भैया तेरा स्ट्रेंथ ये है तो अच्छा थोड़ा अच्छा काम करे तो अच्छा वर्क करे तो यू कैन डू मच बेटर करके अपन उसको बोलते हैं. बेस्ड ऑन और अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम उसको थोड़ा मोटिवेट कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते. सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग फॉर इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट. ये क्या कोऑर्डिनेशन बोलते हो, अभी सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. अभी सेल्स डिपार्टमेंट करेगा कितना सेल करना है, बेस्ड ऑन द सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा. सो देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट में देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर. अभी रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है. सबसे थोड़ा ये कोऑर्डिनेशन रहना, तुम अलग करो हम अलग करके बोलते फिर नहीं होता. So there should be a lot of especially operating division, operating department or commercial department में lot of coordination रहता. Okay, so this so और accounts department बोलता भाई last year loading इतना था, ये year loading कम होए तो immediately operating वाले थोड़ा loading बढ़ाते हैं, commercial वालों को बोलते भाई loading कम हो गया जरा देखो थोड़ा सेल ज्यादा करो, तो हमारे commercial inspector को भेजो मार्केट में और से loading जरा ज्यादा करवाओ ऐसा. All that coordination work will be done. Helps in effective control of the business with the help of standard ratio. Standard ratio अभी I was telling Karishma की standard ratio 2:1 है. Current ratio 2:1 is a standard ratio. 2 से ज्यादा होने से you are thinking asset ज्यादा होने से अच्छा है. You are not अच्छा नहीं. You are idling the money. You are keeping more assets than required. To pay 1 lakh, 2 lakhs is enough. You should not have 3 lakhs. 3 lakhs बोलते अपन खाली उसको idle कर रहे, वो 1 lakh किधर भी use कर सकते. So these standard ratios will help us to have a effective control on the business. Any doubt is there? Please ask me. Helps in financial forecasting and plan. Financial forecasting कर सकते, ये year इतना है business, next year इतना, planning and forecasting दो भी कर सकते based on the figures. अपने पास अभी figures रहे तो अभी देखो अभी कोरोना वायरस अभी ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है, तो ये ठीक है, ये खराब है, ये डेंजर है, ये नई डेंजर है. अब पीपल आर टेलिंग वी डोंट हैव इनफ डेटा. अगर अपने पास डेटा इनफ है, अगर रिजल्ट्स है तो वी कैन टेक सम फोरकास्ट कर सकते हैं भाई ये डेंजर है, यू शुड बी केयरफुल करके. सो समझ में आ रहा ना. सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन. द मोर
information is from the financial statement. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग अच्छा कर सकते हैं. और बोलता है help the management for proper analysis and interpretation. So मैंने proper analyze करना और उसकी interpret करना. This is how one of the very important advantage, uses for the man. It helps in the management for proper analysis and interpretation of financial statement. Then ये अब बोलना ना वो हो गया managerial uses. अब utility to shareholders and investors. So the various ratios such as profitability ratios, liquidity ratios, and other ratios are immense use to the shareholders to understand the financial position. अभी suppose करिश्मा रेलवे आप रेलवे में काम करेंगे या छोड़ देंगे रेलवे को? करेंगे ना सर. क्यों करेंगे? कल रेलवे बंद हो जा रहा है बोले तो करेंगे क्या? नहीं ना सर, पहले बंद हो रहा है तो फिर कैसा करेंगे फिर? हाँ सॉरी, रेलवे बंद हो रहा है बोले तो कैसा काम करेंगे? हाँ नहीं, रेलवे बंद हो रहा बोले तो क्या बिलीव करेंगे क्या? नहीं, रेलवे का पोजीशन क्या, इट इज सच ए बिगेस्ट ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम है ना, है ना? ऐसी छोड़े. अभी दूसरे कंपनी में तुम इन्वेस्ट करते क्या पैसा? सोच समझ के करेंगे नहीं करेंगे? पहले इन्वेस्ट करने के पहले आप फाइंड आउट करते नहीं करते? यस सर. ऐसा. Okay, right. So this is how we have to understand. Utility to creators. Creators, अभी तुम किसी कंपनी में पैसा डालना बोलते हो, ऐसे डाल देते. आपके बच्चों को स्कूल में डालना बोलते हो, करिश्मा, do you check up about the school or not? यस सर. थोड़ा होमवर्क करके नहीं करके ऐसे डाल देते बच्चों को? नहीं सर, पहले सब चेक करेंगे कैसा है, कैसा है उनका स्कूल के बारे में. ये so many things are there. फैकल्टी कैसा है, टीचर्स कैसे है, स्कूल कैसा है, उनका क्लासरूम्स कैसे है, उनका एम्बियंस कैसा है, उनका प्लेग्राउंड कैसा है, उनका रीडिंग रूम कैसा है, उनका कैंटीन क्या, so many things you have to check up, isn't it Karishma? है ना मोहन, पवन? Yes. You check up or not all these things? Yes, sir. So like that, this is what the information is all about. You have to check up all this information. Utility to, so these ratios will help. Utility to creditors, utility to shareholders. It will be helpful. Utility means what? How helpful it is to the employees. Employees are also interested in finance. So now you are an employee, Karishma. You are interested in knowing about the railway. Railway का कैसा चल रहा अभी, ठीक है नहीं है? ठीक है तो चलो हम काम करेंगे, नहीं तो slowly if it is not going to do, you'll try to leave the company, है ना? So employees are also interested in financial and profitability position of the firm, which can be studied with the help of the various accounting ratios. So utility to government. Government also would like to know, want to know the overall financial strength of public as well as the private sector. Kaisa a company hai, how it is growing, is it good for the economy or not, is it bad to the economy or not? Aisa dekh ke, they will try to do. So this information is so much useful. देखो शेयरहोल्डर्स की इन्फ्लुएंस यूज होता है, क्रेडिटर्स की यूज होता है, एम्प्लॉयज की होता है, गवर्नमेंट को भी यूज होता है. सो दैट इज हाउ द रेशियोज विल हेल्प. एनी क्वेश्चंस प्लीज? देखो सो लिमिटेशंस, सी इतने एडवांटेजेस है ना, तो एडवांटेजेस के साथ लिमिटेशंस भी रहते हैं. यू रिमेंबर ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज एनी एडवांटेज देयर विल ऑलवेज बी अ लिमिटेशन आल्सो. फॉर एवरी रूल, for every law there is a flaw के सर का, for every advantage there will be disadvantage. अभी देखो हम बोलते हैं संजय मोहन, अभी कंप्यूटर, अभी सेल मोबाइल फोन सर गुड और बैड? संजय मोहन करिश्मा सिन्हा, मोबाइल फोन सर गुड और बैड? नहीं जरा कुछ डिस्टर्बेंस है, बोलो कोई एक जने बोलो मोबाइल फोन्स आर गुड और बैड?
सर ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा यूज करे तो एडवांटेज है, उसको गलत यूज कर रहे तो उसका डिसएडवांटेज होता है। वेरी गुड, यस। So similarly, हमारे ratios को भी, even though the ratio analysis is one of the most powerful tools of financial math, it suffers from the following. मैं एक example दिया था करिश्मा को, तो 90 marks एक उसका x को आया, इसको 75 marks आए, तो who is a good student बोलते हो? We should know the base. 75 out of 75 is good. 75 out of 100 and 90 out of 100 means 90 out of 100 will be very good. So depends on the nature of use. Very good, Kumar. It is how we use it, and ये ratios भी how you are using, how the information is taken. अभी आप देखते होंगे, अभी आजकल नया ट्रेंड क्या है कॉलेजेस में, एग्जाम होने के बाद हमारे कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे बड़ा बैनर डालते, 100% रिजल्ट है, 100% प्लेसमेंट है, 100% ये है, 100% है। सर आप सुने या देखे होंगे? Yes, sir. Actually, what happens, Karishma? There are some 4 or 5 people are placed in a good company. They will write about their names only, and 4 or 5 people get 100 out of 100. They will write about those 4 names only. But others they don't write. But public will see that only and go away. So this is how we have to understand. Okay. Okay. So this is how to use inherent limitations of advanced derived from the finance, hence they are subject to the limitations. So ratios are meaningless if detached from their source. If you detach and understand, it is meaningless. Last year से year detach करके अब suppose this year sales are there, तो last year से year तुम compare नहीं करे तो will not know whether you are doing good or bad. You should not detach from the source. ठीक है? और limited use of single ratio I told you. एक single ratio से अपने को मतलब नहीं रहता. It should be compared with some standard ratio. 2:1 is good or bad बोलते हो, तब तुम्हारे ratio it should be compared with 2:1 is a standard ratio. For every ratio there's some standard ratio है हमारे पास, उससे compare करना. Next, ratio analysis should be made with what? With caution in the case of what? Interfirm. Interfirm, suppose Karishma, you and me are attending one college. You are attending X college, I am attending Y college. I got very good marks. You got very bad marks. So who is a good student? Can we compare? No, sir. Why? Because our both colleges are not the same. If both the colleges are same, then you can compare. Your teacher is different, my teacher is different. Your college is different, my college. Your information you are getting is very bad, my information is very good. So we cannot be compared. So this is very important. Should be made with caution in the case of interfirm. When you are comparing interfirm, suppose you are joined a 2-year-old college, I have joined 100-year-old college. So my college is a very good college. It is 100-year-old. How can 100-year-old college be compared with 2-year-old college? Can they compare? No. No, like that. So this is how. Though the ratios are there, we have to be very cautious in using them. If you are not cautious, then your result will be bad. Ratio is maybe giving misleading results if the effect of the changes in price level is not considered. Price levels may be inflation rates have also compare karna hai. Without comparing that, you should not take that. Sorry. Sorry, anyone had doubt? Pavan Kumar, कुछ बोल रहे? करिश्मा, मोहन, अजय? No, sir. Good. So no ratio analysis can be meaningful unless the questions sought to be answered are clearly formulated. So analysis अगर meaningful रहना तो जो भी हम question डालें उसको answers clearly formulate होना. अभी how to formulate I'll show you. Comparative study will not be completed only with the help of ratios. Other factors like market conditions, management policies, etc. are to be taken. इतना compare करने के बाद भी market conditions कैसा है वो सब सोचना पड़ेगा. Point number 5 once again. Akash Kumar wants point number 5. I'll go back. Point. Ratio analysis may be giving misleading figures if the effect of changes in price level is not considered. ये price level का क्या होता, Akash? Price level means what? Suppose now you are comparing
तुम्हारे ग्रैंडफादर के टाइम पे कुछ जो भी है 100 रुपए में घर चलता था, अभी 50 लाख से घर चल रहा। क्या मतलब क्या हम ज्यादा खा ले, ज्यादा पी रहे अभी तभी का और अभी का? कैन यू कंपेयर द सेम प्राइसेस अजय? नो सर। हाँ, वी कैन नॉट, बिकॉज अभी का प्राइस अलग है। तो उसको क्या करना, हम इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, CIA बोलते, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लाना। तभी का 100 रुपए अभी 40,000 है, वो 40,000। आकाश समझ में आया मैं बोलने का? यस सर, यस सर। Yes, that is the price level changes have to be considered. Good. उसके बाद no ratio analysis can be meaningful unless the question sought to be answered are clearly formulated. Comparative study will not be completed only with the help of ratios. Other factors like market conditions, management policies, etc., ought to be taken into account. So, if you want to have a proper analysis, so you have to take these things into consideration. Window dressing. हम क्या बार, अभी तुम किसी शॉप के पास जाओ, बार थोड़ा अच्छा डिजाइन करके रखता, अच्छा आइटम रखता, ताकि तुम वो देख के अंदर चले जाएंगे। ये मतलब नहीं कि जो बाहर है वो अंदर भी ऐसी है। विंडो ड्रेसिंग बोल तो क्या, हम अभी एक बच्चा और बच्ची शादी के लिए आए तो हमारे घर पे हम क्या बोलते हैं, हमारी बेटी के बारे, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा वैसा है, हमारा बेटा चांद का टुकड़ा है, हमारा बेटा वो मून है करके आकाश चांद को लेके पार चले जाएंगे, है ना? हम कभी हमारे बेटी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे ना। सो वी शुड आल्सो, द गर्ल साइड पीपल शुड चेकअप। हम तो विंडो ड्रेसिंग करेंगे, इट मींस मैनिपुलेशन, हम मैनिपुलेट कर सकते। अभी अकाउंट्स आजकल ढेर सारे कंपनी में स्कैम्स हो रहे ना, आप सुन रहे ना? करिश्मा, यू आर लिसनिंग, नो? यू आर सीइंग मेनी कंपनीज आर हैविंग स्कैम्स. Yes, sir. That is because of manipulation of accounts in such a way as to conceal vital facts. They conceal vital facts and presenting the financial in a way to show better position than what it actually is. That is called window dressing. Window dressing हम क्या करते, जो सही हो वो नहीं दिखाते, जो ऊपर जो विंडो ड्रेसिंग करके। अभी देखो करिश्मा, sometimes when you go to someone's house, no, their drawing room will be clean and neat. The moment we are telling we are coming to their house, they'll they'll try to clean up their drawing room and keep it clean. Do you know? Yes, sir. But if you go to their kitchen room, you'll die of heart attack. Yes, sir. Yes, sir. Karishma is laughing. Yes or no? Yes, sir. ऐसा ऐसा ही होता है। ऐसे good. So this is what you have to understand. हर एक जने करते तो कंपनी में भी करते लोग। That is called window dressing. Good. No fixed standard. There's no fixed standard. कौन भी नहीं बोल can be late. ये ratio 2:1 fixed रहना करके आइडियल है। तुम बोलेंगे 1.5:1 is better sir. To pay 1 lakh, मेरे पास 1,50,000 रहे तो भी बस ये बोलते। 1 lakh पे करने के लिए 1,20,000 भी बस ये बोलते। So it is all like that, but थोड़ा हम standard ratios रखे बस उतना। It all depends upon person to person, your perspective. आकाश, करिश्मा, तुम सो अभी हम क्या करते, मनी पर्स थोड़े लोग, many of them, मोहन, पवन, तुम सो, या मीन्स यू ट्राई, यू जस्ट से यस और नो। हम क्या करते हैं, हमारे मनी पर्स में थोड़ा कॉर्नर के अंदर किधर भी एक कॉर्नर में थोड़ा पुश करके नहीं दिखे सर का एक 500 का नोट अलग से रखते नहीं रखते करिश्मा थोड़ा? Yes, sir. क्यों Yes, रखते sir. ऐसा? क्यों रखते ऐसा? सर रिजर्व के लिए। रिजर्व के लिए, वेरी गुड। वो कुछ इमरजेंसी कुछ ऐसा रखते, वो कभी नहीं दिखता, वो अंदर ही रहता। कभी इमरजेंसी, कभी जान पे आए तो अपन यूज करते वैसा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। मींस देयर इज नो स्टैंडर्ड। तुम 500 रखते, कोई 100 रखता, कोई 200 रखता, बट रखते ऐसा। सो दिस इज हाउ आवर रेशियोज विल हेल्प अस देयर। सो then change of accounting procedure also by a firm often makes ratio. तुम अकाउंटिंग प्रोसीजर मतलब क्या है? लास्ट ईयर तुम स्टेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे, ये ईयर डिमिनिशिंग मेथड फॉलो कर रहे। लास्ट ईयर फिफो मेथड है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में फिफो मेथड, लिफो मेथड है। ये ईयर कुछ वेटेड एवरेज कर, तो ये मेथड में क्या होता है, थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। सो दैट विल मेक थोड़ा मिसलीडिंग होता है। सो दिस आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज।
देन पर्सनल बायस होता. Ratios are affected by personal bias of the interpreter. अब interpreter आकाश है. Suppose आकाश, करिश्मा, some person has brought one voice अलायंस के लिए लाए, एक बच्चे के बारे में बोल रहा है, ये मीडिएटर. वो बच्चे के बारे में ये अच्छा बोलेगा खराब बोलेगा? वो अच्छा बोलेगा. अच्छा बोलेगा. क्यों बोलते हो? उसका पर्सनल, उसका वो गलत भी नहीं बोलता, उसको मालूम है, बट वो पर्सनल बायस है. तो ऐसा भी हो सकता है. रेशियोज आर अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस ऑफ द इंटरप्रेटर. वो बीच में जो मैं एनालिसिस कर रहा ना, मेरे को जैसा एनालिसिस हो ना मैं वैसा करता. जो मेरे को इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट फिगर्स आर डिस्टॉर्टेड. मैं बोला ना एब्सोल्यूट तुम्हारा 90 मार्क्स 75 मार्क्स से नहीं लेना. It is quantitative and not qualitative. Financial statement. ये जो 1916 वाला है थोड़ा म्यूट करो ना प्लीज. Historical financial statements from which ratios are prepared are historical in nature. Means last year का मेरे पास figures तो last year का रहता, last month का रहता. In modern business, it is more important to have an idea of the probable happening in future rather than what happened in the past. तो हम क्या करते? फ्यूचर में अभी हो गया सो हो गया, आगे क्या होता that is more important. ये हम कभी historically होता. अभी आजकल तो हम लेटेस्ट फिगर्स भी मिल जा रहे कंप्यूटराइज में. आज का फिगर्स आज का मिल जाएगा तो इट विल बी बेटर फॉर अस. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 1 full year, वी वांटेड ऑन टाइम. इसको बोलते हैं ऑन टाइम अकाउंटिंग हो रहा. With the help of computers, we are able to get lot of information which will be more useful. So this is how the ratios limitations are there. Now, Pawan was asking or someone was asking, कैसा calculate करना है? How to take the calculation LTL. अभी जो को classification of ratios हम कर रहे हैं is done as under. तो liquidity ratio के ऊपर this is called short term. Immediately short term means एक 1 year में फाइंड आउट करना आपका पोजीशन कैसा है. हम फाइंड आउट करते करंट रेशियो बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं हम? करंट रेशियो या तो वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं उसको. देन लिक्विड रेशियो या तो क्विक एसिड रेशियो या तो और एक वेरी क्विक. ये अपना लिक्विडिटी पोजीशन बोलता है कि कैसा है. मींस विद द फिगर्स अवेलेबल हमारे पास जो है हम रेशियो फाइंड आउट करके कंपेयर करके स्टैंडर्ड रेशियो से ये ठीक है नहीं ये करके. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ये लिक्विडिटी रेशियो हम ऐसा फाइंड आउट करते हैं. आई टेल यू. करिश्मा, रेलवेज में क्या क्या रेशियोज फाइंड आउट करते बोलो. सर ऑपरेटिंग रेशियो, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स. ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स एट डिविजनल लेवल है ना. ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको क्या क्या रेशियोज करते हैं. गुड. तो ये जो रेशियो से काम करके कैलकुलेट करके ये फिगर्स हम कैसा फाइंड आउट करें उसके लिए फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला के हिसाब से हम रेशियोज लेंगे. रेशियोज लेके हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे रेलवे से दूसरा रेलवे को कंपेयर कर. तो हमारा रेलवे का लास्ट ईयर कैसा था, अभी कैसा है. तो एनीथिंग वी कैन डू, इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म. अभिषेक थोड़ा म्यूट करो. गुड. सो सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में ये तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म में 3 करेंगे. लॉन्ग टर्म में डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. एक एग्जांपल हम देंगे डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. करिश्मा अभिषेक सुनो एग्जांपल. नाउ आई वांट ए लोन फ्रॉम यू and I have to pay you 10,000 interest per month. Every month I have to pay you 10,000 interest. My salary is 30,000 per month. Will you give me the loan? नहीं देंगे. नहीं देंगे. अगर 40,000 रहे तो देंगे. थोड़ा बहुत. मेरा सैलरी 40,000 है और मैं आपको 10,000 इंटरेस्ट पे करना है. आप लोन देंगे मेरे को? दे सकते हैं. दे सकते हैं. 50,000 रहे तो और ज्यादा अच्छा. और ज्यादा. वेरी गुड. 60,000 रहे तो आराम से दे सकते हैं. आराम से. वेरी गुड. दैट इज अ परफेक्ट आंसर. सिन्हा ने परफेक्ट आंसर कर रहे हैं.
तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 टाइम्स रहना। करिश्मा सिन्हा आप करेक्ट बोले, 6 टाइम्स। ये 20,000 30,000 रहे तो नहीं देना। मैं आपको एक महीना दे सकता, दूसरा महीना नहीं दे सकता। चांसेस आर देयर दैट आई वोंट पे यू द इंटरेस्ट। रोहन समझ में आ रहा ना? मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप कैलकुलेट करना। ये बंदा है अपने पास लोन ले रहा है, अगर ये 6 टाइम्स उनका इंटरेस्ट के अंदर 10,000 है, तो मेरा सैलरी 60,000 आए तो आप दे सकते। 60,000 आए तो ये 10,000 हमें दे सकता करके आप चिंता, आप बेफिक्र रह सकते। अगर मेरे पास 20,000 है, एक महीना देता, 2 महीना देता, तीसरा महीने से बंद कर देता, नहीं दे सकता। So this is how the ratios will help. Any questions, please? Yes, please. Sarla, Mohan, Karishma, Vikram. समझ में आया सर ना? सूत्र उसका सर फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला के हिसाब से बताने से ज्यादा बेस्ट होता है। ओके हाँ, मैं करता, मैं वही आप फॉर्मूला से करने से 6 अच्छा, टाइम्स okay. आए तो 6 टाइम्स आए Okay. तो देना पड़ता, वही तो बोल हाँ रहा हाँ हूँ मैं। ओके हाँ हाँ आई टीच यू द फॉर्मूला। मैं उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 6 टाइम्स okay. आना आंसर आपको। अगर हाँ नॉर्मल सा चार- है, जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा उसको हमको हमारा पैसा सेफ होगा, हमको हाँ, वापस मिल जाएगा तो हम दे देंगे। ओके हाँ, तो 6 टाइम्स देख लेना, रेशियो 6 हाँ। टाइम्स देख। वेरी गुड। मैं वही रेशियो को कैसा कैलकुलेट करना मैं देखा था, मैं आंसर से आपको बात करूं। ये डेट Okay, इक्विटी sir, okay, रेशियो, डेट इक्विटी मींस व्हाट? बार वालों का पैसा और खुद का पैसा। यू वांट टू डू योर बिजनेस विथ योर मनी और आउटसाइडर मनी? डेट एंड डेट इज आउटसाइडर, इक्विटी इज योर मनी। क्या बोले? डेट मींस बार वालों का, इक्विटी हाँ। मींस ओनर का। आप आपका पैसा से बिजनेस करेंगे, बार वालों से, और दोनों के हिसाब से करेंगे। ओके डेट इक्विटी खाली डेट से करेंगे या इक्विटी करेंगे या डेट एंड इक्विटी से करेंगे? दोनों सर, हाँ, दोनों से करेंगे। दोनों से करेंगे। अगर मेरे को पूछने से मैं बोलता मेरा खुद का पैसा से करता, मेरा मतलब मेरा आई वांट लाइक दैट इन माय लाइफ। क्यों? मतलब क्या है, अगर हम बाहर वालों से पैसा लिए, अगर ठीक से नहीं चल रहा, उनको इंटरेस्ट देना है, हेडेक हो जाएगा। इक्विटी मेरा खुद का पैसा है, आए तो आए, नहीं तो नहीं। बट तुम बोले सका कि डेट इक्विटी से करने से एडवांटेज रहता। डेट को क्या करना रहता, डेट को जो इंटरेस्ट देना है दे देंगे, वो 5% 6%, बाकी का सब अपना। वो डेट यूज करते हैं अपन बिजनेस में इन सच ए वे दैट वी कैन मेक मोर मनी। वैसे 10% अपन निकाल से उधर से हम उनको 5% ही इंटरेस्ट देंगे, तभी अपने पास 5% रुक जाता। ओके सही बात है। तो वैसा, this is all Karishma. We have to really analyze the understanding of the ratios. Okay. Okay. I'm trying my best. I do not know how far you are all able to understand. ये तो ऑफलाइन रहे तो और बढ़िया रहता क्लास, बट नहीं सर बहुत अच्छा समझा रहे सर, अच्छा लग रहा है। So this is how डेट इक्विटी रेशियो। प्रोपर्टी रेशियो का मतलब है, प्रोपर्टी का तुम्हारा पैसा जो है, हम एसेट्स अपनी जो एसेट्स है अपने खुद के पैसे से कितना है वो चेकअप करेंगे। दैट दिस रेशियो विल टेल अस हाउ टू कैलकुलेट। ओके, अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है करिश्मा। इन्वेंट्री मीन्स आप खरीदेंगे, आपका अभी आपका किचन में विल यू गो ऑन एवरीडे राइस खरीदते? आप राइस का, अब राइस खाना है ना, राइस व्हीट शुगर डेली मार्केट जाके खरीद देते हैं? डेली खरीदते मार्केट जाके? नहीं रोज नहीं खरीदते सर। नो व्हाई? अच्छा, एवरी वीक जाते? नो, वेरी गुड, ही सेड नो। एवरी वीक जाते? मंथली व्हाई मंथली, व्हाई नॉट ईयरली करिश्मा? स्टोर करके रखो, रोज पहुंच जाएगा। हाँ, सॉरी, हो जाता है, खराब हो जाता है। वेरी गुड। सो यू नो व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट व्हेन रिक्वायर्ड। ऑनर जो भी ऑनर 7 से है, नॉट व्हेन रिक्वायर्ड। व्हेन रिक्वायर्ड बोल तो क्या, आज रिक्वायर्ड 2 दिन में हो गए तो फिर तीसरा दिन जाते नहीं। हम क्या करते, वी आर ऑल सैलरीड पीपल है ना, हम क्या करते नॉर्मली एवरी मंथ खरीदते। मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स मंथली खरीदते। few items we buy weekly, few items like vegetables we buy daily, we know all that. Yes. अभी डेली वेजेस वाला करिश्मा, कैन यू बाय फॉर ए वीक और ए मंथ? नहीं, उससे नहीं होगा ना।
वो नहीं हाँ। खरीदेगा, उसका हिसाब से उन्हें दिन भर काम करेगा, शाम में पैसा मिलेगा, जाके खरीदेगा, वो खाएगा, फिर नेक्स्ट डे पैसा आगा। ओके, तो लाइक दैट इट ऑल डिपेंड्स। हमारे पास अभी आंध्रा में है, तेलंगाना में पीपल विल बाय राइस फॉर 1 ईयर करिश्मा, एक बार ही खरीदते। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, एक बार खरीदने से थोड़ा चीप में मिलेगा, सस्ता पड़ता है। हाँ सस्ता पड़ता, बट वो खराब भी हो सकता है, उसको मेंटेन करना, सो देयर ऑल, उसको प्लेस भी रहना, यू हैव टू हैव। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स इज आइडियल बोलता। कंपनी में क्या है, 6 टाइम्स इज व्हाट, 12/6 मींस एवरी 2 मंथ्स खरीदे तो आइडियल है। एक एक कंपनी के एवरी 2 मंथ्स, एवरी मंथ, ऐसा इट ऑल। सो दिस विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ योर इंडस्ट्री इज देयर व्हिच इज द बेस्ट फॉर यू। सो ईच वन विल टेल अबाउट। अभी डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, तुम क्या क्रेडिट पे बेचते लोगों को, तुम्हारा पैसा व्हेन यू वांट इट बैक, मोहन, अजय, सिन्हा, आप क्या बोले सर? आप क्रेडिट पे बेचेंगे, डेटर्स को पैसा आप गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं, उन लोग आपको पैसा कभी देना आपको दे सकते हैं, कभी देते, क्रेडिट कभी में, यदि आपको उसका चाहिए। क्रेडिट अच्छा है लेके जाते थे तो उससे क्या होगा, हमारा सामान बिक जाएगा और पैसा हमको बाद में मिल जाएगा। हाँ, सामान बाद रखे में रखे कभी खराब हो आपको, जाएगा। आपको कभी मिलना है, आपको कभी चाहिए पैसा, मैं 10 साल के बाद देता, आप देंगे क्या? नहीं नहीं, तो फिर नहीं देंगे। हाँ वही था ना, पीरियड ऑफ टाइम में देना पड़ेगा सर उनको, जो that is a period of time you should tell whether you want in 30 days, whether you want in 60 days, whether what is better for you. Depending upon it. So this all will tell us. अगर पैसा आपका तो सामान बिक गया, you are happy, but वो 10 साल के पास पैसा दिया तो मतलब नहीं। हाँ, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। हाँ वैसा, वेरी गुड, that is what debtors turnover ratio will tell us what is your time limit. You want 2 months credit, you want to give 3 months credit, आप चेकअप करके देखो, आपको जो आइडियल है, आपको भी वर्कआउट होना है। आप किधर से 10% में इंटरेस्ट पे लाए, आप उधर 10,000 इंटरेस्ट दे रहे, इधर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं आया तो लॉस हो जाएगा। तो so each one is got, now am I clear? इतने ढेर सारे रेशियोज है, for every ratio there is importance is there. जैसा हम डेटा से क्रेडिटर्स को हम कितना टाइम में देना हम सोचते। ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी क्या है, एवरी डे तुम्हारे को सपोज 100 रुपीज का खर्चा है करिश्मा, 100 रुपीज का तुम्हारा वेजिटेबल्स का सोचो 100 जो भी है, तो एवरी मंथ तुम्हारे को 3000 वर्किंग कैपिटल चाहिए एवरी डे। ओके, तो 27th डेट के दिन तुम्हारे पास पॉकेट में कितना रहना, 27th डेट के दिन 300 रुपए कम से कम होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, 300 तो कम से कम रहना। अगर नहीं रहने से तुम थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, संभाल के करना, 80 रुपीज स्पेंड करना, 70 रुपीज करना, ताकि मेरा 30th को आएगा, 30th को मेरे को सैलरी आ जाएगी। तो ऐसा, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, हम ये टर्नओवर मींस व्हाट, सेल्स के हिसाब से कितना सेल कर रहे, हमारे फिक्स्ड एसेट कैसा यूज कर रहे वो चेक, और टोटल एसेट कैसा यूज कर रहे सेल्स के ऊपर। सेल्स क्या कि कम है और ज्यादा एसेट्स है, हम क्या है क्लासरूम लगा लिए कॉलेज में, अभी हमारे एक क्लासरूम है, क्लासरूम 60-70 स्टूडेंट्स के लिए लगा दिए, 2-3 स्टूडेंट आए, मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं। तो तुम्हारे मालूम नहीं हो रहा, तुम 3 बच्चों के लिए तुम क्यों 100 बेंचेस ला के खरीद लिए, पहले 10 बेंच लाओ, अगर बढ़े तो और 20 लाओ, उसके बाद 30 लेकर आओ। ऐसा नहीं कि तुम ला के रख दिए 3-4 जने इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस रेशियोज विल टेल अस कि हमारा सेल्स कितना है, हमारा एसेट्स कितना है, इसका टर्नओवर कैसा है, अभी चेकअप करके इसको एनालाइज करना। हमें क्लियर? यस सर। यस सर। अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के हिसाब से ये क्या है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म से बना। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को मैं करा, उसमें अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो, ये तुम्हारा उधर ही ऑपरेटिंग रेशियो जितना इंपॉर्टेंट है रेलवे में, हमारे कमर्शियल बुक कीपिंग में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग रेशियो। इट इज एन इंडेक्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ये इसके हिसाब से देखना। ऑपरेटिंग रेशियो एक है, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो एक है, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो है, एक्सपेंसेस रेशियो, ये सब सेल्स से कंपेयर करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो by sales into net profit ratio by sales, all that I'll show you with the formulas.
इन रिलेशन टू सेल्स इतने, इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स है। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे, अभी पैसा बैंक में डाले तो अच्छा है, नहीं तो लैंड में डाले तो अच्छा है। करिश्मा, कहाँ? लैंड में? लैंड में क्यों? लैंड में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, बैंक में इंटरेस्ट कम मिलता है। हाँ, वो लैंड पे कब्जा करके चले गए तो फिर कैसा करके चले गए तो बैंक में डालने से इंटरेस्ट मिलता है ना सर थोड़ा, तो इट ऑल डिपेंड्स। सर छोटा कम पैसा रहेगा तो बैंक में डाल देंगे, ज्यादा पैसा है तो लैंड में करेंगे। हाँ, लैंड में डाल को लैंड वाला लेके चले गए तो कोई लैंड कब्जा वाले कर लिया तो बैंक में तुरंत हमको पैसा मिल जाएगा तुरंत। सिक्योर। हाँ, लैंड में तुरंत नहीं मिल के पाएगा। वेरी गुड। लैंड वैल्यू तो कैश नहीं डबल कर हो पाएगा जाएगा। उसको तुरंत। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल करिश्मा। आजकल मैं आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, एवरी सेकंड पीपल लैंड जो है ना वो थोड़ा डुप्लीकेट है, फेक लैंड है, फेक पेपर से ये सब हो रहा है। करिश्मा, मोहन, अजय। Yes, sir. यस सर। यस सर, So यस you सर। should be very careful. People like us, people like who are working class people, we should be very careful. अगर पैसा तुम बोले सबका ज्यादा है, it is lying idle बोल कर डाल सकते हैं। अगर अपना हार्ड एंड मनी उधर ज्यादा आ रहा करके किधर डालेंगे, वो कंपनी तो भी बंद हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। या तो अभी हमारे हैदराबाद में एवरी डे वन लेडी करिश्मा, शी इज कॉल्ड, उन्हें एक 20-30 करोड़ का स्कैम कर रही, लेडीज को किटी पार्टी को बुला रही, लोगों को मेरा कंपनी ऐसा है, मैं ऐसा है, मेरा ऐसा है, वो अच्छा ज्वेल्स पहन के शी इज अट्रैक्टिंग पीपल एंड शी मेकिंग देम कन्विंस की इसके पास है, तो लोग इन्वेस्ट करके सोप का पैसा लेके अभी डुबा दी। हाँ, ये हो रहा है, ऐसा होता है। नहीं हो रहा है नहीं, अभी लेटेस्ट तुम हैदराबाद का न्यूज में देखो, शिल्पा चौधरी करके तुम मारो, तुम्हारे मालूम हो जाता है न्यूज में। ओके। हाँ, all high-end people ना, all IAS officers, IPS officers, all revenue officers के बीवियां सब 1-1 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ डाले, सब पैसा चलेगा। She told she will double the figures and give. So what I'm trying to tell, we have to understand the ratios in such a way, it will help us कि return on investment किधर आ रहा, किधर safe है, वो सब देख के करना। Return on capital एक देखो, earnings per share किधर अच्छा आ रहा, तो अपना कंपनी कितना दे रहा है, पीपल ऑल्सो विल लाइक टू नो, सो दिस ऑल विल बी नोन। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? थोड़ा समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? यस सर। तो आई विल कम बैक टू थियरी पार्ट, थोड़ा एक दो करंट रेशियो सब है, आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, बट एक प्रॉब्लम आपको करने से यू विल अंडरस्टैंड। देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? Mohan, Karishma, Ajay, you were asking, you know, gross profit by net sales into 100. Any doubt? Karishma, net profit ratio हम कैसा find out? Net profit by net sales into 100. Operating ratio कैसा होता? Cost of goods sold plus operating expenses by sales into 100. Then net profit operating ratio will be 100 minus operating ratio. Particular expenses ratio is what? Particular expenses by sales into 100. इसका मतलब क्या है? जो भी 1969 अजय है, मोहन है, करिश्मा, सिन्हा, एक्सपेंसेस मींस व्हाट? अभी तुम्हारा सेल्स क्या की 100 रुपए है और योर स्पेंडिंग इज 95, इज इट गुड? नो सर। हाँ, वैसा दैट विल टेल अस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कितना करना तुम्हारे सेल्स आने के लिए। सो यू शुड बी केयरफुल। ओके, अभी सो ऑपरेटिंग रेशियो देखो, अभी आपको थोड़ा, बिकॉज यू आर ऑल रेलवेज, आई वांट टू टेल दिस वेरी इंपॉर्टेंट। करिश्मा, मोहन, सिन्हा, देखो ऑपरेटिंग रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ जजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ रेलवेज, यस और नो? Yes. यस सर। It's one of the very important ratio for zonal railways, since they are treated as profit centers, wherein both the earnings and expenses are accumulated and accounted. तुम्हारा अर्निंग्स कितना आ रहा, तुम्हारे एक्सपेंसेस कितना आ रहा, तुम चेकअप करो। ईच जोनल रेलवे, इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, अभी आप करिश्मा बोले आपका ऑपरेटिंग रेशियो 90 है, मेरा 95 है। यू आर टेलिंग योर रेशियो, योर रेलवे इज ए बेटर रेलवे, यू आर टेलिंग। अभी सदर्न रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो मालूम है आपको?
किसी को? Anyone can tell operating ratio of Southern Railway? मेरे हिसाब से कुछ 104 या 105 है. I do not know. आप चेकअप करो. जो मेरे मालूम है. मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है मोहन? यस सर। उसका मतलब क्या है? क्या मतलब ये है कि जो वर्किंग एक्सपेंसेस है सर, जो एक्सपेंडिचर है सर, वो ज्यादा है। हाँ, वेरी गुड. ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. 100 से ज्यादा है. तुम 100 कमा रहे, तुम्हारा 120 खर्चा कर रहे. अरे कम होना चाहिए कुमार, सर, रेशियो कम होना चाहिए. पवन कुमार ICF से है. हाँ सर. पवन कुमार, हाँ यस सर. you are from ICF, Perambur. यस सर. यस सर. Your FNC has come and Yes. joined here. आपको मालूम है? आपका प्रिंसिपल FNCO जो है, क्या सर? आपके प्रिंसिपल FNCO जो थे उधर. हाँ यस सर. यस इधर सर. हमारे स्टेट पास है. हाँ यस सर. सिंघिया साहब इधर ज्वाइन. एज ए डायरेक्टर. हाँ, एज ए डायरेक्टर. हाँ यस यस. आई नो सर. हाँ, तो अभी मैं करिश्मा को पूछ रहा था, उनका रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 90 है, हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 95. She's telling their ratio is their. If you see the figure, their railway is good, but the operating ratio is affected by the following factors. ये factors को भी देखना. ऐसा नहीं कि अभी Southern Railway is bad करके नहीं बोल सकते ना. Southern Railway bad है. From the over so many years उनका operating ratio 100 से ज्यादा है. सरला. Yes, sir. Karishma, that means that railway is very bad. We should close that railway. नहीं. हाँ, नहीं ना? नो सर. No, sir. Why? Because देखो. Why it is bad? Because of geographical features of the area, industrial development. अभी अपना always southeastern हमारे, I know long back I'm talking about 85, 90s में ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 54%, 50% रहता था. करिश्मा 45, 50, 55. कैन यू बिलीव? अभी भी उनका कम होगा. आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कितना है. आई लेफ्ट रेलवेज लॉन्ग बैक, बट आई एम जस्ट टेलिंग. सो आई रिमेम्बर दे यूज्ड टू गेट ब्रेड. इट इज अ ब्रेड अर्निंग रेलवे बोलते थे. तो खाना पिलाना सब वो रेलवे करता था. इंडियन रेलवे वो इतना इंपॉर्टेंट था साउथ ईस्टर्न रेलवे. तो एनीवे, so operating ratio is affected by the following factors: graphical features of the area, industrial development, etc. Commodity mix transported by the particular railway. क्या commodities उन लोग ट्रांसफर कर रहे. Staff strength of the zone. अभी zonal railways फॉर्म कर रहे. सडनली एक जोन को ज्यादा लोग आ जाते, एक जोन को कम लोग आ जाते. ज्यादा लोग आने से उनको सैलरीज देना पड़ेगा ना. राइट सर. हाँ, तो उनका फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा, तो उनका रेशो कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा. फिर ये मतलब नहीं कि that railway is not good. So we should know ऑपरेटिंग रेशियो चेकअप करना. यू आल्सो शुड चेकअप द फैक्टर्स. उनका रेशियो क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, या तो कमोडिटी मिक्स है, या तो स्टाफ स्ट्रेंथ के प्रॉब्लम है, या तो एक्सिस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एक रेलवे में कुछ भी नहीं, ऐसा आते रहता नेचुरल रिसोर्सेज. तो अभी देखो साउथ ईस्टर्न रेलवे में कोल एंड स्टील बहुत बढ़िया आता है. स्टील एंड कोल तो अच्छा पैसा मिलेगा. लोडिंग है ना, है नहीं? यस यस सर. यस. आपका देखो पूछा ना मोहन, पवन. देखो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल वर्किंग एक्सपेंस टू ग्रॉस अर्निंग्स. तो अपन ऐसा लेते हैं, टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड. हमारे कमर्शियल में क्या करते, इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय सेल्स इनटू 100. सेम, इधर टोटल वर्किंग एक्सपेंस, उधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इधर ग्रॉस अर्निंग्स, उधर नेट सेल्स इनटू 100. तो ये कैलकुलेट करने से आपका 90% आएगा, मेरा 95 आएगा. तो योर रेलवे इज बेटर देन माय रेलवे. ऐसा. So total working expenses क्या? Ordinary working expenses consisting of revenue expenses of demand 3 to 13, excluding suspense लेना है, plus appropriations made to DRF and pension fund. ये total working expense आएगा. Gross earnings will be coaching excluding refunds,
रिफंड्स निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, अदर कोचिंग प्लस गुड्स एक्सक्लूडिंग रिफंड्स प्लस अर्न अर्निंग्स। समझ में आया? ये ऐसा कैलकुलेट कर दो, जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक रेलवे का करना करके मैं आपको दिया। एनी क्वेश्चंस अभी तो भी कुछ डाउट है? यस प्लीज, साइलेंट हो गए? हेलो, नो क्वेश्चन सर। अरे वाह, नो क्वेश्चन, बहुत नो डाउट। बहुत बढ़िया है, नो क्वेश्चन। रविंदर, यस तोमर, सर। यस सर। ये मोहन, करिश्मा, एक जोक बोल रहा हूँ, अगर नो डाउट्स बोले तो आई शुड अंडरस्टैंड इन टू वेज, आइदर यू हैव अंडरस्टूड 100% और यू हैव अंडरस्टूड 0%. Understand 100% sir. Oh, so sweet, so nice. I'm very happy. You have understood. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. So this is how we can. So और एक ratio important है. One is very operating ratio is very important, and return on capital from railways point of view. These two I wanted to tell you. Return on capital from railways means percentage of revenue surplus to capitalized charge. अपना investment capitalized charge कितना है, and अपना percentage means net profit ratio. मतलब ये net. Then और एक है percentage of net receipts to capital. Net receipts कितना है? Understood sir. Good. So these two ratios are there. When I calculate, I'll show you how to calculate. Okay. So this is how someone was asking me. We'll go back to ये दो ratios important है. सर बोलो. Yes, आकाश. सर 2017-18 के बाद जब रेलवे बजट जनरल बजट से जब मर्ज हो गया तो उसके बाद तो सरप्लस तो नहीं आया सर. नेट रेवेन्यू ही तो सर. हाँ सर, नेट रेवेन्यू ही तो सर नेट सरप्लस सर. सरप्लस तो उड़ गया ना सर, उसके बाद ऑब्सोलीट हो गया. मतलब ऑब्सोलीट हो गया सर. मैं आकाश एक आप बोल रहा हूँ मैं, बाद में अपन एक स्पेशल क्लास लेंगे उसके ऊपर, और एक सेशन में लेते हैं एक्चुअल अकाउंटिंग में. ये जो अपने रेलवे फिगर्स जो है ना, सो दे आर ऑल फज्ड फिगर्स बोलते हैं. कोई भी ठीक से फिगर नहीं, जो जैसा चाहिए वैसा उसको ऐड करके निकालते हैं. जैसा ऑपरेटिंग रेशियो, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आई शुड नॉट टेल बट यू शुड आल्सो नो. एक रेलवे में क्या करते हैं, ये आउटस्टैंडिंग जो है ना, उसको मार्च महीने में हम क्या करते हैं, रिकवर हो गया और वी गॉट द मनी करके दिखाते, फिर अप्रैल में उसको रिवर्स एंट्री कर देते. उससे मतलब क्या हो रहा सर? वो कैमोफ्लेज मतलब सर वो बस ऐसा. ऑल दोस आर फज्ड फिगर्स. जी सर. रेलवे में जो भी हो रहा है, इट्स नॉट, नथिंग इज करेक्ट. जो जैसा चाहिए वैसा मैनिपुलेट करके फिगर्स आ जाते रहते हैं. जी सर, समझ गए सर. उसके बारे में मैं बाद में बात करता. ओके. तो ये एक्टिविटी रेशियो है, ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर, एक का फॉर्मूला है, मैं लिख के दिखा. सो इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से व्हाट. अभी देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है. समवन वाज आस्किंग हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. कैसा है इन्होंने दिया, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ईयर्स. सो सेल्स इन्होंने दिया 5 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना है 20, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. देखो मैं दिया आपको. ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. आपका सेल्स का फिगर कितना है 5 लाख, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, कॉस्ट इतना है, सेल इतना है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2 लाख. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. देन नेट प्रॉफिट कैसा आएगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दो. दिस इज द फॉर्मूला. तो 2 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, नॉन ऑपरेटिंग इज 20, तो 1 लाख प्लस 20 निकालने से 80. तो 2 लाख माइनस 1 लाख 20 आएगा 80,000 इज योर नेट प्रॉफिट रेशियो. तो इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अभी ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास कितना है, 2 लाख आया करिश्मा. तो हम क्या करेंगे, 2 लाख बाई 5 लाख इंटू 100 करें तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%. समझ में आया? समवन वाज आस्किंग नो सर एक प्रॉब्लम करके दिखाओ करके. सो दिस इज हाउ दे विल गिव द इंफॉर्मेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्किंग एंड डू द फॉर्मूला डाल के करना. कोई नेट प्रॉफिट रेशियो कैसा आएगा,
180,000 नेट प्रॉफिट बाय 5 लाख इंटू 100 करे तो आपको आएगा 16%। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 840 है, नेट प्रॉफिट आने से तुम्हारे एक्सपेंसेस निकालने से इधर खाली कॉस्ट से फाइंड आउट करें, इधर एक्सपेंसेस भी निकालना है, निकालने से आपको 16% ही हो रहा। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख है, योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1 लाख है। तो टोटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग है 4 लाख है, तुम्हारा सेल्स 5 लाख है। दैट मीन्स योर ऑपरेटिंग रेशियो इज व्हाट? 80%। मीन्स फॉर एवरी 100 rupees you are spending 80 rupees. Any questions on this? No sir. तो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो को मतलब कुछ भी नहीं, जो बच जाता अपना ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो अपना जो सरप्लस है वो 20, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो। 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो मतलब 80। सो दिस इज ऑल। तो ग्रॉस प्रॉफिट में 40% है, थोड़ा आगे और गए तो एक्सपेंस देखो, दैट मींस फाइनली वी आर एंडिंग विद 16% अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अभी देखो ये दिया, कैलकुलेट करंट रेशियो बोलता, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब क्या होता है करिश्मा, ये चैप्टर में अपने को ये फिगर्स है। तो पहले करंट रेशियो का, समवन आस्किंग सम डाउट, every 100 rupees we are earning rupees 80 only. Every 100 rupees we are spending, earning, we are spending 80 rupees. Yes. If you are earning 100 rupees, we are spending 80. Very good. Correct. That is operating ratio. Correct. So ये है। अभी करंट रेशियो क्या होगा बोलो? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपको मैं आगे बोलता। करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो, लिखो, आपके पास पेपर है तो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। Karishma, you just write. Mohan, you write. You wanted to know. So what current assets by current liability is a formula. First current ratio. अभी current ratios में क्या क्या लेना है देखो। What is current ratio? दिख रहा है आपके पास? जो कैश इन हैंड है वो लेना, आपके पास जो कैश एट बैंक है वो लेना, बिल्स रिसीवेबल लेना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेना है और आउटस्टैंडिंग इनकम्स लेना है। इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. So someone was asking no how to do the problem, Ravinder या तो मोहन या तो करिश्मा, you were asking no। तो important क्या फॉर्मूला आना, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। उसके बाद ये होना व्हाट आर करंट लायबिलिटीज, सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज। सर करंट एसेट पे क्या सन्ड्री डेब्टर नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्स रिसीवेबल है ना। अच्छा नहीं लिखा, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएगा, सॉरी सन्डे डेटर्स भी आ जाएगा। ओके, इधर सन्डे क्रेडिटर्स है, इधर सन्डे क्रेडिटर्स भी आएगा बिल्स। ओके आकाश, सन्डे डेटर्स भी आ जाएगा कंपलसरी। ओके, आई डिडंट पुट इट। ओके जस्ट सर मतलब जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो सर जब एसेट एंड लायबिलिटी का एसेट साइड का पूरा हम लोगों का करंट एसेट है। नहीं पूरा का पूरा नहीं रहता, करंट भी रहता, फिक्स भी रहता आकाश। ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है कल भी लैंड, हाँ सर जी। तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स होता, प्लांट एंड मशीनरी होता, इन्वेस्टमेंट्स होता, वो सब नहीं आएगा। हाँ वो सब नहीं आएगा। वेरी गुड। खाली करंट मींस जो अभी देखो आपका कैश इन हैंड में जो है, आज आपके पॉकेट में कैश इन हैंड आकाश 100 रुपीज है, कल 100 रुपीज नहीं रहता, कल 80 भी रह सकता, 200 भी रह सकता। तो जो चेंज होता है इमीडिएटली इन ईयर्स टाइम, उसको बोलते हैं हम करंट। जो करंट मतलब क्या है, जो कीप ऑन चेंजिंग। अभी डेटार्स है वो आपने को 10,000 देना है, आज वो 2,000 देगा तो फिर 8,000 देना पड़ेगा। Like that it keeps on changing. What keeps on changing is called current. What does not change normally or depreciable assets like land and buildings, plant and machinery, उसको बोलते हैं हम fixed assets को बोलते हैं, वैसा वो करंट हो गया नहीं। तो सिमिलरली करंट लायबिलिटीज हम लेंगे, सन्डे क्रेडिटर्स है, इधर बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हम इधर लेंगे। ओके
सो देखो अभी देखिए, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे इधर करंट रेशियो। तो अभी इधर सॉरी करंट रेशियो, इसमें क्या क्या लेंगे आकाश, करिश्मा? डू यू टेक लैंड एंड बिल्डिंग्स इन करंट रेशियो, करंट एसेट? No, sir. No, sir. Very Absolutely good. not. Plant and machinery? No. No. No, sir. Very good. Bills receivable? Yes. Yes, sir. Yes. Stock? Yes. Yes, sir. Debtors? Yes, sir. Yes, sir. Cash at bank? Yes. Yes, ये sir. चार ले लेंगे। वेरी गुड। करंट लायबिलिटी में देखो, शेयर कैपिटल विल नॉट टेक, रिजर्व्स नहीं लेंगे, रिजर्व्स इज नथिंग लाइक बट प्रॉफिट है। जी। बिल्स विल टेक, यस सर, लेंगे करंट लायबिलिटी। सैलरी क्रेडिटर्स लेंगे, Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेंगे, डिबेंचर्स भी नहीं लेंगे। ओके, अभी देखेंगे। देखो करंट एसेट्स हम चार ले लेंगे, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डे ये सब 65,000 इधर डालेंगे। अब तुम्हारे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है 13,000, ये डालेंगे। So 65 by 13,000 is what? The ratio is what? 5:1. स्कोरिंग कुछ दिया नहीं है। कौन सा पेपर सब्जेक्टिव है? डेबिट बैलेंस शीट वाले। मोहन, करिश्मा, आकाश, ठीक है? यस सर। Yes, sir. So this is Yes, sir. मोहन वाज आस्किंग मी, सर एक प्रॉब्लम करो तो ऐसा रहता। प्रॉब्लम लेना, इसमें मोहन क्या होता है इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट है रेशियोज। अभी आपको शेयर करेंगे पीपीटी, वो शेयर करने के बाद यू गो थ्रू, मेरा नंबर भी है उसमें, कभी भी डाउट आए तो मेरे को एनी टाइम यू कैन आस्क आकाश, प्रशांत, ओके, रविंद्र, यस सर। सिन्हा, कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। राइट सर। तो ये क्विक और एसिड रेशियो का क्या है? क्विक एसेट्स में करंट लायबिलिटी से फॉर्म। ये क्विक एसेट्स में हम क्या करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे, हटा देंगे। ये 65,000 में खाली क्लोजिंग स्टॉक हटाने से वो क्विक एसेट्स हो जाता, एंड करंट लायबिलिटी ये डिवाइड करें तो 4.09:1। तो करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज क्विक एसेट्स। सो इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर में, थोड़ा रेशियोज को, व्हाट इज अ रेशियो, व्हाट इज अ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में क्या इंफॉर्मेशन लेना, लाइक और ऑपरेटिंग रेशियो जो रेलवे का है वो कैसा कैलकुलेट करना आपको मालूम है। एक 2-3 प्रॉब्लम करने से आपको आ जाएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को मैसेज करना है, तो फोन कर लेना, मैं आपको क्लियर कर देता। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? नो, विल कीप सम डाउट सेशन, अनदर 10 minutes क्लास इज देयर। ऐसा डेट इक्विटी रेशियो देखो, आउटसाइडर्स बाय शेयरलेस फंड्स हम करें तो 1.14। सो डेट और आउटसाइड मींस ऑल द डेट्स टू आउटसाइडर्स लाइक डिबेंचर्स, मींस बाहर वालों को देना लॉन्ग टर्म। शेयरलेस का फंड्स बोलते इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनर्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, ये सो दिस डिवाइड बाय दिस करे तो तुम्हारे को होता। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में बोला ना, नेट सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट। सो सेल्स जो भी है उन्हें दिया देखो, प्रॉब्लम है सेल्स दिया देखो, ये सेल्स लेके बाय फिक्स्ड एसेट्स। व्हाट आर योर फिक्स्ड एसेट? इधर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी है, दो ही है फिक्स्ड एसेट, है ना? 15 + 8 कितना है? 23, ठीक है? एनी डाउट? मोहन, ठीक है? सर वो लास्ट डेट इक्विटी रेशियो एक बार एक्सपेंसेस देना सकते हैं। डेट मींस व्हाट, बाहर वालों का पैसा कितना और अपना ओनर्स का कितना है। तो 1.14 मींस बाहर वालों को ज्यादा है, वी हैव टू नो इट। इट्स नॉट ए वेरी आइडियल क्वेश्चन। वी आर कीपिंग आउटसाइडर मनी मोर, तो उनको इंटरेस्ट पे करना, अगर कल के दिन अगर कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल, उनकी इंटरेस्ट नहीं पे करे तो अपने प्रॉब्लम हो जाता। दे विल फोर्स अस टू क्लोज, वी हैव टू क्लोज, सेल आवर कंपनी एंड पे द आउटसाइडर्स, अगर वो प्रेशर करे तो। 0.65 टाइम्स इज आइडियल रेशियो, मींस अपना 100 रहे तो उनका 60 रहे तो अच्छा है। यस करिश्मा, क्लियर? यस सर। बोलो, एनी डाउट्स? सर नेट वर्थ, यस आकाश बोलो। सर नेट वर्थ। नेटवर्थ बोल दो क्या है?
ये जो प्रोप्रेटर्स फंड्स को नेटवर्थ बोलते हैं, उनका प्रोप्रेटर्स जो कंपनी में नेटवर्थ मींस व्हाट, उनका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहते हैं, उसको नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ इज नथिंग बट प्रोप्रेटरी फंड्स। इधर मैं किधर तो भी दिखा हुआ है आपके लिए, देखो नेटवर्थ है, देखो outsiders fund, all debts, debentures, shareholders funds is equal to equity, preference, all reserves for accumulated losses and deferred revenue expenditure to be written off. ये निकालना है. So a very high debt equity ratio is unfair. मैं बोला ना, if very high rate it is not. An ideal ratio 1:1 is also okay, depending on the nature of. मेरे हिसाब से 0.6:1 is very ideal. No rule of thumb method for India. Generally 60 to 65% is considered satisfactory. ये सब नेटवर्थ का 60-60 रहे तो अच्छा रहेगा. So this is how we have to calculate. Any doubt? अभी outsiders, करिश्मा you were telling no, outsiders का पैसा 40,000 है, मेरा 35, तो उनका थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा, उनको इंटरेस्ट पे करना. कंपनी इज डूइंग गुड और बैड आल्सो, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. हम इंटरेस्ट सर काट के भी पे करना पड़ेगा. अगर शेयर होल्डर्स का पैसा रहे तो कंपनी अच्छा रहे तो देंगे डिविडेंड, नहीं तो नहीं देंगे. कोई अपने सर पे नहीं बैठता. तो लाइक दैट. डिबेंचर्स मींस व्हाट? आउटसाइडर्स. डिबेंचर होल्डर्स मींस व्हाट? अगर हम शेयर होल्डर्स में तो शेयर्स खरीदते तो शेयर होल्डर्स इज ओनर ऑफ द कंपनी. अगर हमको जरूरत का पैसा इमीडिएटली ज्यादा चाहिए तो वी फ्लोट द डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आर आउटसाइडर्स. उन लोग अपने को देते दे बाय द डिबेंचर्स इन आवर कंपनी. वी हैव टू पे देम ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. दे आर ऑल क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स आर क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी. रविंदर, आकाश, करिश्मा और कुछ डाउट्स? नहीं सर ठीक है सर, ओके सर. ठीक है. एनी डाउट्स? तो इसको प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा आगे. हाँ, यस. ये थोड़ा मैं 2-3 प्रॉब्लम भी दिया. देखो ये रेलवे का क्वेश्चन पेपर में आया करिश्मा. अभी इधर क्या बोलता है? यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द बिलो क्वेश्चन. कंपनी रिकॉर्ड शोस. कैश इन हैंड क्या होता है? देखो तुम्हारे पास अगर पेन पेपर है तो लिखो करंट एसेट का. देखो एक करंट एसेट रीडिंग लिखो, करंट लायबिलिटी लिखो, उसके नीचे देखो कैश इज व्हाट? करंट एसेट. वेरी गुड. अकाउंट्स रिसीवेबल इज व्हाट? करंट एसेट. वेरी गुड. इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री बोल तो स्टॉक. करंट एसेट. प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा? करंट. वेरी गुड. लॉन्ग टर्म एसेट्स. और लॉन्ग टर्म में तो वो चलेगा फिक्स्ड एसेट सर. इट्स नॉट लॉन्ग टर्म इज फिक्स. वेरी गुड. छोड़ दो उसको. करंट के नीचे आपको लिखो. ओके. अकाउंट्स पेएबल. करंट लायबिलिटी सर. वेरी गुड. Notes payable due in 10 months means bills payable. Note payable means bills payable within 10 months. Current liability. Very good. Wages payable. Current liabilities. Very good. Long term liabilities. Sir, fixed liabilities. Yes, very good. Stockholders means owners. ये share क्या है ना? Long term liability. Very good. हो गया. अभी देखो तुम्हारा क्वेश्चन है ये तुम्हारे पेपर में कंपनी में तुम्हारे रेलवे का क्वेश्चन पेपर. कंपनी वर्किंग कैपिटल बोलते हो. फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का करिश्मा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? मैं नहीं दिया ना. वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लिखो. वर्किंग कैपिटल. करिश्मा. यस सर. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल. क्या है तुम्हारा आंसर? What you got?
Current asset minus current liabilities. हाँ 1916 मोहन कितना आया? नहीं करे इतना नहीं करे टोटल. Someone has given 1,30,000 का करंट देखते हैं. We'll see. वर्किंग कैपिटल इज नहीं ना. देखो वर्किंग कैपिटल क्या क्या था. कैश 10, 30 और 80. 1,26,000 इज करंट एसेट्स. देखो 1,26,000 करंट एसेट्स. ठीक है. 1,26,000 लिखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज होगा 30 + 25 + 5 60 60. तो 1,26,000 माइनस 60 तो कितना आएगा? 66,000. हाँ देखो आंसर है ना, मिल गया इधर. Yes, very good. On yes, 66 is the beyond. Now, what is a company's current ratio, Karishma? Current assets by current liabilities. अभी लिखो 1,26,000 by 60,000 करो. Sir, it's option C. Option C. Very good. Perfect. Very good. Yeah. Then the company's quick ratio. Very good. I'm very happy. अभी बोलता. Quick ratio का फॉर्मूला देखो. Quick ratio का फॉर्मूला क्या है? Quick assets by current liability. लिखो फॉर्मूला. इधर देखो, मैं दिखा ना, क्या दिखा तो क्विक रेशियो. देखो इधर है, देखो. हाँ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स में करंट. क्विक एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड निकाल. जो अभी करंट एसेट्स है अपना 1,26,000 में, उसमें क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड निकाल देना. क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड कितना है इधर? क्लोजिंग स्टॉक 80 + 60, ये दो निकाल देना. तो करंट एसेट्स कितना? 40,000. 40,000 करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज कितना? 40,000 by 60,000. 40,000 by 60,000 करो. Zero point 66 देखो 0.669 और नथिंग बट 7:1. ऑप्शन A. Yes, very good. आया ना इधर आंसर? 0.66 nothing, 0.7. So you'll get full marks. If what I told you, Karishma, if you know the formula, एक बार दो बार करने से you'll get understand. So like I've given some questions for you all. Just see. एक दो problem number 4. Very good. Should we include? No, we should not include prepaid. We should minus from current assets. You minus prepaid and closing stock. You'll get quick assets. So this is all. I've given one more formula. This is the solution. So I've given some 4 problems. Theory is important and all the ratios you do it. If you have any doubts, you can ask me. Sir, please share the PPT in WhatsApp group. Yes, sir. May I? Nageshwara garu, banner. We share in the WhatsApp group, sir. Yes, sir. They will send it to you. Banner sir will share with you. Okay, sir. Any questions? Sir. Yes. Tell me. ये बोली थी सर, और वीडियो जो है ऑनलाइन सर नहीं डला है यूट्यूब का. आप लोग का जो क्लास हो गया सितारा का सर, तो उसको सब अपडेट करने से अच्छा रहता सर. ओके ओके. सेम क्वेश्चन सर. सेम. इंडक्शन ट्रेनिंग का भी नहीं डाला. हाँ अच्छा.
सर सारी यूट्यूब इंडक्शन ट्रेनिंग का भी सर, और सर हम लोग का जो अपेंडिक्स 3 वाला सर जितने हो रहे यूट्यूब में सर सारे अपलोड नहीं हुए सर, अपडेट डल जाने से सबको हेल्प हो जाता सर। ओके, हम देखेंगे कौन सा अपडेट नहीं हुआ वो अपडेट करेंगे। जी सर। Thank you everyone. Thank you sir. I hope you all have understood. Thank you sir. Please give your feedback. If you have any other queries also, you can ask sir. Please give your feedback and then we'll wind up the session. Okay, done sir. आज का सर क्लास बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। Okay. Okay, on behalf of the academy, I thank Shri G. Vijay Kumar sir for taking the session on ratio analysis. And also you have explained the operating ratio. Thank you sir, thank you so much. I hope all the participants have enjoyed, beneficial to all the participants. Thank you all. Tomorrow we have session, login time is 2:45 and the session starts at 3 o'clock. Thank you all, thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much.